Hey students, welcome back. As I have shared video lectures on this topic, control and coordination, on our YouTube channel, Markandeya Public School, Baradga. So, I received few phone calls from the students of class 10th that they understood it very well, but they need line-to-line explanation of the chapter, control and coordination. So, from today onwards, I am going to share a screen capture video lecture on the topic control and coordination. So as we already discussed, what is control and what is coordination. So control means it's a shortly as we learn, हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि हम मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, अपने बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो चालू रहते हैं, एंड दैट लाइफ प्रोसेस हैपन्स because of the different organs which are working in our body, like as heart, liver, kidneys, arteries, veins, brain, spinal cord. Lot of organs are working, so that is the control of the body. All these organs are controlling our body, and all these organs are interconnected. मतलब ये जो सभी ऑर्गन्स है इनका एक दूसरे के साथ कुछ ऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है. सो दैट्स वाई इन शॉर्ट कंट्रोल मतलब अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनका कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ वो कैसे मैचअप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपको देखे. सो here few examples are also given. That touching hot object I have already explained, but once again I am repeating it. So touching hot object को हम टच कर लेते हैं तो अपना हाथ रिफ्लेक्सली हम उससे निकाल लेते हैं. एक आधी पिन अगर अपने बॉडी में चुभ जाती है, सो जनरली व्हाट हैपन्स, अपने जो कुछ भी सेंस ऑर्गन्स है बॉडी के, आइज़ है, स्किन है, ईयर है, ओके, सो जितने भी सेंस ऑर्गन है वो इसमें पर्टिकुलरली मेनली फंक्शन करते हैं. उसके बाद मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है, नर्व सेल्स है, ऑल दिस कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको शॉर्टली सेंस ऑर्गन्स है, उसके बाद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, हाउ दिस नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल एंड न्यूरॉन बोथ आर द सेम concept. So how this all the concepts we are going to how this all these organs works, we are going to clarify it. Okay, so here first we will see the animal nervous system. So हियर एनिमल नर्वस सिस्टम को हम अगर पढ़ेंगे तो जनरली आप एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग को कंसिडर कर सकते हो. सो एनिमल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एनिमल नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है कैसे चालू होता है. ओके, सो एनिमल नर्वस सिस्टम में हम रीड कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो हियर आई एम गोइंग टू रीड इट आउट. सो इन एनिमल्स such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9th. So touching a hot object is a urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond it. So how do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of the nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. So, gustatory receptor will detect a taste, while olfactory receptors will detect smell. Okay, so जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो सेंस ऑर्गन है, ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, आइज हो गया, वो इस सेंस को या स्टिम्युलस को कैप्चर कर लेते हैं. वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल. वहाँ पे नर्व सेल का प्रेजेंस होता है. हम नर्व सेल को पूरे डिटेल में देखेंगे कि हाउ डज ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, हाउ डज दिस न्यूरॉन्स वर्क्स. ओके, सो वी विल लुक इट फर्दर. सो here two words are mentioned, you can see, just I am going to highlight it, just a minute. Annotation, okay, highlight. Okay, so here you can see here gustatory and olfactory receptor. You can see I have highlighted it in yellows. Okay, so gustatory receptor will detect a taste. So अपना ब्रेन जो होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स के वर्किंग फंक्शन होते हैं.
लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर बट वी आर लुकिंग फॉर जस्ट टू. गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं इट विल डिटेक्ट टेस्ट. अपनी टंग जो है वो टेस्ट को जो डिटेक्ट कर लिए थे उसके टेस्ट, इट इज़ अ बीटर, इट इज़ स्वीट, इट इज़ साल्टी, कैसी है ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल. नोज़ में जो स्मेल आती है हमें कुछ स्मेल अच्छी होती है, लाइकली होती है, कुछ स्मेल जो बैड होती है. ओके, सो ये जो फंक्शन है ये अपने बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं. ओके, फर्दर नाउ हमने कि जो बताया है कि नर्व सेल्स, व्हाट इज़ नर्व सेल, नर्व सेल ये कैसे वर्क करते हैं. सो हियर वी विल लुक फर्दर व्हाट इज़ नर्व सेल और ये नर्व सेल कैसे वर्क करते हैं. ओके, सो हियर you can see it is a diagram. Here I am highlighting, it is a diagram of the neuron. Okay, so you just look after it. Okay, here these are the dendrites. It is a blackish जो spot है, it is a nucleus. ऑरेंज कलर का जो स्पॉट आपको दिख रहा है दैट इज द सेल बॉडी. उसके बाद सेल बॉडी से होके एक एक्सटेंड होके एक वायर लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है दैट इज द एक्सॉन. ओके, आफ्टर दैट इट इज़ अ एक्सॉन यू कैन सी. और लास्ट में जो ये जो पार्ट है दैट इज द नर्व एंडिंग. मेक इट क्लेरिफाई. डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. उसके बाद न्यूक्लियस दैट इज द ब्लैकिश स्पॉट. न्यूक्लियस का फंक्शन आपको सभी को पता है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द पर्टिकुलर सेल. ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है इट इज़ ऑल्सो ए सेल, एक नर्व सेल है दैट इज उसको हम न्यूरॉन कहते हैं. ओके, सो दैट इज़ द न्यूक्लियस. उसके बाद ऑरेंज कलर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द सेल बॉडी. उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल होंगे. जैसे कि आपको पता है हर एक सेल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनल्स. माइटोकॉन्ड्रियाज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, vacuoles, so a lot of organelles will be located. Okay, but here roughly diagram is given, that is the dendrites, nucleus. Here is the cell body and most important part that is the axon of the nerve cell or the neuron. Okay, look after it. So how does it happen? Suppose we take an example. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद हम अपना हाथ रिफ्लेक्सली वहाँ से उठा लेते हैं. सो हाउ डज इट हैपन्स? जब हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच कर लेते हैं एक आधी नीडल अपने बॉडी में पिन हो जाती है. सो ये जो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं दिस आर द डेंड्राइट्स. ये जो डेंड्राइट्स दिख रहे हैं आपको वो स्टिम्युलस को टच को सेंस कर लेते हैं. इट विल पास थ्रू द सेल बॉडी. ये टच होने के बाद सेल बॉडी में आएंगे और सेल बॉडी के थ्रू इट विल गो थ्रू द दिस पोर्शन दैट इज द एक्सॉन. एक्सॉन से लेके ये नर्व एंडिंग तक के पहुंच जाएंगे. ओके, क्लैरिफाइड, क्लियर है आप सभी को? डेंड्राइट्स से हियर इज द पाथवे. आपको हर चीज़ का एक पाथवे ध्यान में रखना है. डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड एक्सॉन से लेके नर्व एंडिंग में जाएंगे. ओके, फर्दर आगे जब आप देखिएगा कि फर्दर व्हाट हैपन्स नर्व एंडिंग में आने के बाद. हियर आप देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट, हियर इज द डायग्राम नंबर 2. ओके, हियर इज द डायग्राम नंबर 2. आप देख सकते हो. ओके, सो ये जो नर्व एंडिंग है दैट इज दिस पोर्शन इज द नर्व एंडिंग. सो व्हाट हैपन्स, ये जो नर्व एंडिंग है वहाँ पे एक सिनेप्स हो जाता है, एक जंक्शन हो जाता है. ओके, ये जंक्शन हो जाने के बाद वहाँ पे दूसरे नर्व सेल का या दूसरे न्यूरॉन का वहाँ पे कनेक्शन हो जाता है. और ये जो नर्व एंडिंग है दिस आर द नर्व एंडिंग. यहाँ पे दूसरे नर्व का कनेक्शन हो जाता है, वहाँ पे एक केमिकल क्रिएट होता है एंड दैट केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. वो केमिकल जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में पास ऑन हो जाता है और वहाँ पे दूसरी जो नर्व है यहाँ पे जो है दूसरा जो न्यूरॉन है वो अटैच हो जाता है. सो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में पहुँच गया. क्लियर है? एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में पहुंच गया एंड अपने बॉडी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंटेड. सो हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, तो एक्सॉन थ्रू नर्व एंडिंग में गया. नर्व एंडिंग में वहाँ पे एक सिनेप्स होता है, जंक्शन होता है, जॉइंट होता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में पहुंच गया एंड दिस चेन विल बी कंटिन्यू until it will reach to the brain. This chain will be continue up to what? कब तक कंटिन्यू रहेंगी? जब तक ये जो
मैसेज है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, जब तक के ब्रेन में नहीं पहुंच जाता तब तक के ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें क्या होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको रिसीव करेगा, उसके बाद ब्रेन वहाँ से एक रिप्लाई मैसेज देगा। ये सब आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा, इट विल बी क्लैरिफाइड, बट आपको एक सिंपली बता दे रहा हूँ कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को अटैच होकर ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन वहाँ से फिर से मैसेज देगा और उस मैसेज का रिप्लाई हमें उसी स्पीड से इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स हम उससे हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ निकाल लेंगे, क्योंकि ये मैसेज पहुंच चुका है और ब्रेन ने हमें उसका रिप्लाई दिया है कि इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, ये एक डेंजरस सिचुएशन है, यू हैव टू रिमूव योर हैंड एंड यू विल बी रिमूव्ड, आपका हाथ वहाँ से आप उठा लेंगे। ओके, सो दैट इज़ द नर्वस सिस्टम जो होती है ये वर्क करती है। ओके, सो हियर इज़ द होल वीडियो you are going to look. Okay, thank you so much. Stay at home and stay safe.